In this part, we're going to look at some of the most commonly asked questions by MBA colleges during the interview. Why MBA? Why this college? Which specialization? So the biggest fact, why MBA? We all know the essential true answer is to get a job. But over there abroad, people do MBA for the knowledge. They do MBA and they want to set up their own businesses. तो इसीलिए जब अब्रॉड लोग जाते हैं एमबीए करने यूएस में या यूरोप में, तो इसेंशियली वो मिनिमम 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं कि धंधा कैसे चलता है, ग्रास रूट लेवल पे काम कैसे होता है, आपको आइडिया है, फिर आप एमबीए करोगे और एकदम सीनियर लेवल पे पहुंच जाओ या अपना बिजनेस स्टार्ट करो. But here in India, as even Chetan Bhagat has said, IIMs have become more about placement agencies. People go for MBA in India to get a job. 20-25 लाख का इंडियन MBA करते हैं जॉब की. एक इंडियन माइंडसेट है जो जल्दी बदल जाएगा, बदल रहा है, ठीक है. तो बट डेफिनेटली नॉलेज शुड बी द क्रस्ट. सो आंसर इज शुड बी, और ये अंदर से भी होना चाहिए. वाई MBA? तो एक तो इंटरेस्ट है, एक पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो मैनेजमेंट के लिए सूटेड है. गुड लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, रिस्क टेकिंग स्किल्स, अबिलिटी टू फोरसी फ्यूचर, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और ये सारी स्किल सेट्स है जो मैनेजमेंट के लिए सूटेड है. सेकेंड पार्ट, why you want to do? The second part is should be, means obviously you can honestly say that career options and good career opportunities, but I would like to see more and more Indians doing MBA and going for their own entrepreneurial route. तो आप ये भी इंटरव्यू में बोल सकते हैं, I want to set up my own business. And as they say, gone are the days wherein people could make mistakes, learn from the mistakes. Gone are those days. Right now in MBA, what all you learn is a lot through case studies, and some of the finest teachers you get in MBA colleges, people from industry, people, the PhD professors from Ivy League universities abroad, people who are with proven track record. तो IITs, IIMs हम बोलते ही है कि वहाँ के टीचर्स, प्रोफेसर्स मीन्स दे आर डेमी गॉड्स, राइट? तो MBA क्यों करना है? तो एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर्स, what all you get to learn there, lot of case studies. MBA का नॉलेज है पूरा केस स्टडीज से ओरिएंटेड. कहाँ क्या गलत हुआ, कोडैक ने क्या गलती कर डाली, नोकिया ने क्या गलती कर डाली, तो टेस्ला का क्या सक्सेस प्लान था, स्टीव जॉब्स व्हाट ही डिड, आकियो मोरिता, जैक वेल्च ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक. So much we learn from case study. So question comes, then people will say, so did Dhirubhai Ambani do MBA? He never did MBA, but he made sure that his both the sons, one is an engineer from Ivy League University, one is an MBA from again global top 5 university. So basically because he realized, so you need to sharpen your weapon before the war, right? So ये सारा sharpening है, knowledge gaining के लिए MBA करना है, जो खुद के बिजनेस में एप्लीकेशन के लिए हो सकता है. अब हम देखते हैं, अभी रिसेंट केस स्टडी हो रही है कि जो IT कंपनीज के सीईओ की सैलरी पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ थी, एंट्री लेवल 3 लाख 5 लाख, CEOs 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़. Today entry level is still 3-4 lakh, and today's newspaper article only says TCS CEO salary 25 CR. Means for your proven track record, your leadership skills, you are rewarded in the industry. Sundar Pichai and we know Satya Nadellas of the world. आज तो पूरे ग्लोब टॉपर इंडियंस हो गए हैं. इंदिरा नूई तो स्टॉलवर्ट रही है. तो बेसिकली no harm in saying or no harm in pursuing a corporate career, but even the answer can be, I want to learn and apply it for my own business.
इसके बाद के questions, what kind of business you are thinking of, essentially it can be the next question. And definitely like, अब मैं 46 years का भी हो चुका हूँ, बट टिपिकली बच्चे बड़े सिटीज में जाते हैं तो सपने होते हैं खाने का ढाबा डाल देंगे। हम जब पुणे आए तो इच्छा थी एक आधा साइबर कैफे खोल देंगे। लोग पूना में छोटे सिटीज से आते हैं तो देखते हैं क्या फ्रेंचाइजी लेके जाए। पूना में जो चाय नहीं बिकती है वो पूरे छोटे छोटे शहरों में उनकी फ्रेंचाइजी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो मीन्स बेसिकली इच्छाएं तो मन में 1000 टाइप की होती है। टुडे डिजिटल रिलेटेड इच्छाएं होती तो सेम यू शुड एक्सप्लेन। Every second day I think of a new business idea, but I think the ideas are raw. I need to get the knowledge first, and when the right time comes, I may work for a couple of years, gain the experience in the industry. And we know, दो सिम्बी के ही पास आउट है। एक ने ड्राई फ्रूट वाला हैप्पी लो चालू कर डाला, एक सिम्बी पुणे का ही पास आउट है। उसके पिताजी का वड़ा पाव का दुकान था, उसने ब्रांडिंग करके जंबो वड़ा पाव, मुंबई का पॉपुलर वड़ा पाव ब्रांड है। तो हजारों केस स्टडीज है। आप आपका ट्रेडिशनल बिजनेस अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। सो आंसर जरूरी नहीं है कि आज ही मेरे पास बिजनेस आइडिया है। सो यू कैन ऑलवेज से दैट आइडियाज कीप ऑन पॉपिंग अप। Many of the times I'm underprepared. I do not know how to scale it, and that's why I need a proper knowledge, right? And we know बहुत से अच्छे कॉलेजेस में तो अब खुद ही इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए। वही के वही आइडिया बन जाती है, वही के वही स्केलिंग अप हो जाता है। एल्यूमनाई आपको फंडिंग करने आ जाती है। शार्क टैंक तो है ही अपने पास में। तो बेसिकली इसेंशियली व्हाई एमबीए, इसका एक आंसर, एक योर सूटेबिलिटी एंड इंटरेस्ट, and second part either for corporate growth or for your entrepreneurial person, right? So ये कुछ भी हो सकता है। Now what specialization you want to do? अब लोग इसको बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं और मैं कॉलेज को वेटेज देता हूँ। IIM अहमदाबाद से आपने क्या किया है, फिनेंस किया है या मार्केटिंग किया है या HR किया है, फर्क नहीं गिरता है। There are few colleges when people come to know, एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर, टाटा प्रमोटेड कॉलेज है, वो लेबर रिलेशंस है। तो ऑब्वियसली वो पॉपुलर हुआ लेबर रिलेशंस के लिए, टाटा ने चालू किया। तो HR वहां का ज्यादा पॉपुलर है, डज नॉट मीन मार्केटिंग खराब है। सो देयर आर फ्यू कॉलेजेस जहां के कुछ कोर्सेज कुछ पॉपुलर हो जाते हैं, एंड देयर इज नो गारंटी दैट आपने MBA इन फिनेंस किया है तो जॉब आप फिनेंस में ही करेंगे, ऐसा कोई नेसेसिटी थोड़ी है। तो आप एक अच्छे कॉलेज में MBA करने पहुंचे, ये प्रूफ है कि आपकी मैथमेटिकल, वर्बल, लॉजिकल स्किल्स अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स अच्छे, इंटरव्यू में आप उनको कन्विंस कर पाए। But at the same time, specialization, when you want to answer or even you want to personally think of it, look, today's business revolves around few key people. So HR is very, very important. You meet every second girl, she says, I want to do HR. I like to interact with people. This cannot be the answer, right? तो HR मीन्स आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझती है, आपको इंटरेस्ट है। सिर्फ लोगों से इंटरैक्ट करना अच्छा है ये HR नहीं है, या सिर्फ रिक्रूटमेंट या सिर्फ जर्नलिस्ट प्रोफाइल ये नहीं है। तो HR पॉलिसीज टू मेनी अदर थिंग्स कम इन HR। तो बट सिंपली एक आंसर ये मत दीजिए। मार्केटिंग, सबने वही बोला है दैट obviously McDonald's burger essentially is not the best burger in the world, but it's the burger which has the largest market capitalization, the company ka, ya it's most sold burger in the world. The marketing techniques, right? So marketing is one thing which differentiates, and that's what creates the buzzword, and not necessarily the best brand will always succeed. ठीक है, इसीलिए किसी ने बोला है जो दिखता है वो बिकता है, एक मैनेजमेंट गुरु ने बोला है। तो मार्केटिंग बोलना है, फिनेंस बोलना है। जनरली देखिए MBA फिनेंस से ज्यादा CA का फिनेंशियल नॉलेज अच्छा होता है, बट दैट्स व्हाई मेनी CAs आर नाउ गोइंग फॉर MBA, क्योंकि CA गिव्स यू नॉलेज
MBA gives you that the personality trait and the thought process and all that. So by particular specialization आप अपना आंसर तैयार रखिए कि मुझे पर्सनली एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने बोल दिया अकॉर्डिंग टू मी HR इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मार्केटिंग नहीं है क्या? तो आपको एक तो आपका आंसर नहीं बदलना है और दूसरा आपको समझना है कि ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मुझे ये लगता है ये सही है। एंड सो वैसे भी फर्स्ट ईयर इज कॉमन फॉर ऑल द MBA, so I will take inputs from my seniors, my teachers, my mentors, and then I will decide ये भी हो सकता है। For the moment I think marketing, I think operations, आज supply chain operations इतना important हो गया है। अपन जो भी फ्लिपकार्ट से सारा डिजिटल जो भी ऑनलाइन शॉपिंग देख रहे हैं उसमें सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन वी नो नाउ बिजनेस एनालिटिक्स काफी बूमिंग सेक्टर है, तो I see future in business analytics. I have that kind of logical thinking. I have a bit of technical knowledge. तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड है, थोड़ा सा लाइकिंग है और आपको उसका फ्यूचर या सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट लगता है, ऐसे आंसर दीजिए। तो खराब कुछ नहीं है। एंड व्हाट आई कॉल इज डेफिनेटली समटाइम्स स्ट्रेस इंटरव्यूज डू अकर। स्ट्रेस इंटरव्यूज क्या होते हैं? जानबूझ के तुम यूजलेस हो, तुम खराब हो, यू आर यूजलेस, यू डू नॉट नो एनीथिंग, गेट लॉस्ट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, यू आर टोटली रॉन्ग। ऐसे समटाइम्स स्ट्रेस इंटरव्यूज डू अकर एंड दे आर जस्ट टू चेक how you perform under pressure. That's why there are these kind of questions which are there. I remember I attended a road show by Indian School of Business, Hyderabad, ISB. GMAT स्कोर पे होता है, 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस पे होता है, इंडिया का ग्लोबल MBA को आंसर है। और उसके रोड शो में they were telling that in a 5-star hotel the interview was going on. And suddenly, this is what they told in the road show. It's an actual incident what occurred. In a 5-star hotel, interview was going on, and a bulb fell down. One of the lights, the bulbs fell down, which was not planned. It accidentally occurred, and people started sharing. It became viral. उस time तो internet था, ये WhatsApp और Twitter नहीं था इतना. And people started discussing there is a new pattern in ISB interviews that they suddenly check your reaction if the bulb falls. So means basically sometimes unplanned stress हो सकता है, ऐसा ये उन्होंने शेयर किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। Sometimes planned stress हो। So कोई भी स्पेशलाइजेशन खराब नहीं है एंड यू गो फॉर वन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिंदगी भर उसी चीज से रिलेटेड काम करोगे। आप एक बार CEO बन गए तो क्या आप सिर्फ मार्केटिंग देखने वाले हो क्या? राइट। सो ये कुछ चीजें हैं। और तीसरा पार्ट है व्हाई दिस कॉलेज। अब सबको मालूम है मस्का पॉलिश चलेगा, यस, तो बटरिंग तो चलेगा, बट वी लाइक लिसनिंग गुड वर्ड्स अबाउट आवरसेल्फ। कितना ही आपको पता रहे कि ये फेक है, फ्लैटरिंग है, बट स्टिल वी एंजॉय सम पीपल गिविंग अस सम कॉम्प्लीमेंट्स। आपने भी मुझे बोल दिया कि सर ये सेशन बहुत अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये पता है इतना अच्छा ना भी हुआ हो, लेकिन यार चढ़ा रहा है, बट अच्छा तो सबको लगता है। तो दैट ईगो पॉलिशिंग पार्ट। सो कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट, known for its pedagogy, the knowledge sharing, the industry interaction। सिर्फ प्लेसमेंट पे मत रुकिए। अब जैसे मैं मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ बॉम्बे एक ऐसा सिटी है, मुंबई, आमची मुंबई, यस, तो मुंबई एक ऐसी सिटी है कि जहाँ की सिटी इटसेल्फ टीचर्स यू अ लॉट। कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो गिवन अ चॉइस बिटवीन बैंगलोर, मुंबई, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, ऑलवेज प्रेफर सेम लेवल के कॉलेजेस, स्लाइट ऊपर नीचे में मुंबई को प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज वो सिटी में सीखने मिलता है। बड़ी ही डायनामिक सिटी है। मैं खुद रहा हूँ 6 महीने और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वहाँ के लोग भी मस्त है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए, लोकल से सीखने के लिए, डब्बा वालों से सीखने के लिए। 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन है, यस, वहाँ पे IIMs ने उन पे केस स्टडी चला रखी है।
तो भागती दौड़ती सिटी, कमर्शियल कैपिटल, तो थोड़ी थोड़ी चीजें ये भी मैटर करती है। तो कहीं अगर कॉलेज मुंबई का है तो यू कैन ऑलवेज से सर इवन द लोकेशन गोज इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज। तो ये भी है, टीचर्स अच्छे हैं, एल्यूमनाई नेटवर्क अच्छा है, एंड सर अबव ऑल द प्लेसमेंट्स आर गुड। ये भी सारा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज सुप्रीम है। तो हर कॉलेज का कुछ एल्यूमनाई, कुछ वहाँ के प्रॉफ्स के बारे में आप पता करके जाइए, पूछ ही सकते हैं, अच्छा अच्छे टीचर है तो बता दो एक दो नाम। रिक्रूटर्स, प्लेसमेंट अच्छे तो बताओ लास्ट ईयर के कौन से टॉप रिक्रूटर्स थे। तो ये थोड़ा बहुत हर कॉलेज के वेबसाइट पे रहता है, आप वो भी देखिए हुए जाइए। तो ऐसा तो ये नहीं है कि इतने 3 इंटरव्यू क्वेश्चन कर डाले कि खत्म हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वही बार बार घूम फिर के आता है, इट बॉइल्स डाउन टू द सेम पॉइंट, नो योर स्ट्रेंथ, व्हाई, and you can be a little bit of fake here and there, but at the same time, and आज का यंग ब्लड इंडिया का देखा जाता है कि सबके सपने बड़े, ये इंडिया का इसेंशियल चेंज है। नौकरी अब कम लोगों को करनी है, दे वांट टू बी एम्प्लॉयर्स, दे वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स, एंड एमबीए कॉलेजेस भी यही चाहते हैं कि आप ये नॉलेज का नेशन बिल्डिंग में यूज करिए। अपने नेशन के सेंट्रल लीडरशिप भी ये चाहती है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, मैं भी यही चाहता हूँ, कॉलेजेस भी यही चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप खुश रहे। बट when they say कि नहीं नहीं धंधा मत कर, तो because they want you to know the risk associated. So that's why first initial few years in the industry, gain the experience, know how it works. Even if you are having some business idea, check it, blueprint stage पे जाइए, थोड़ा सा beta version पे जाइए, check करिए, and then take the plunge. So coming back to the questions, why a particular college, why you want to do MBA, and what specialization you want to do, and few अपने skill set, अपने बारे में, बाकी बारे में तो पता रखिए। So we again meet and continue. Thanks a lot, kids. Yes, bless you all.